آپ کو بتائیں کہ حکومت سے مذاکرہ کامیاب، پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل 2 ہفتوں میں حل کرنے کی یقین دہانی، پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیلر مارجن کا معاملہ مشاورت سے طے کریں گے، مارجن کے حوالے سے اسمبلی کابینہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ خطے کے موجودہ صورتحال کے باعث ہم سب تکلیف میں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک پہاڑ کی مانند ہمارے سامنے ہے، قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل جاری رہے گا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب، پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل 2 ہفتوں میں حل کرنے کی یقین دہانی، پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن اور ڈیلر ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیلر مارجن کا معاملہ مشاورت سے طے کریں گے، مارجن کے حوالے سے اسمبلی کابینہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث ہم سب تکلیف میں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک پہاڑ کی مانند ہمارے سامنے ہے، قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل جاری رہے گا۔ اوگرا چیئرمین اور اپنی وزارت کی طرف سے میں یہ حل کروا کے ان کو یہ خوشخبری جلد از جلد دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شفاف نظام بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے اگر معاملات او ایم سی اور ڈیلروں کے درمیان سیٹل نہیں ہوتے تو 2 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بھرپور بیٹھیں گے، اثر نو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور 18,000 میں دریائے جناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 83,495 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ تریمو بیراج سے پانی کا اخراج 69,995 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے سے ملکہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعدد ادارے الرٹ۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ 18,000 میں دریائے جناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 83,495 کیوسک ریکارڈ، تریمو بیراج سے پانی کا اخراج 69,995 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے سے ملحقہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے الرٹ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں موسلا دھار بارش، ستیانہ روڈ، جھنگ روڈ، سمندری روڈ، جڑاوالا روڈ سمیت متعدد علاقے پانی پانی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں موسلا دھار بارش، ستیانہ روڈ، جھنگ روڈ، سمندری روڈ، جڑاوالا روڈ سمیت متعدد علاقے پانی پانی۔ صوفی برکت علی انڈر پاس میں پانی جمع، بیشتر نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ میٹرو منصوبے کی تعمیرات کی سائٹ پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، کچہری بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، وکلا عدالتی عملے اور سائلی پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں، نکاسی آپ کے لیے واسطہ مشینری متحرک دکھائی نہ دی۔ آپ کے بار پھر اپڈیٹ کریں کیونکہ فیصل آباد میں موسلا دھار بارش، ستیانہ روڈ، جھنگ روڈ، سمندری روڈ، جڑاوالا روڈ سمیت متعدد علاقے پانی پانی۔ مونسون کا دوسرا سپیل جاری، فیصل آباد میں ستیانہ روڈ، جھنگ روڈ، سمندری روڈ اور جڑاوالا روڈ کے اطراف میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع، جی ٹی ایس چوک، صوفی برکت علی انڈر پاس بھی پانی سے بھر گیا۔ بارش کے پانی کی وجہ سے میٹرو منصوبہ کی تعمیراتی سائٹ پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی، جبکہ نکاسی آب کے حوالے سے واسا کی مشینری متحرک دکھائی نہ دی۔ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح کچہری میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا، ایسے میں وکلا، سائلین اور عدالتی عملہ بارش کے پانی سے گزر کر جانے پر مجبور۔ وکلا کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کو چاہیے کہ واسا کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ حل کرے تاکہ آئے روز بارش کے بعد جمع ہونے والے پانی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ بارش کا پانی ہے جی اپنے صدر نوں بس چاہیے کہ سارا جڑا سیوریج کا نظام تے اپنا سیٹ ہونا چاہیے کم سے کم، یعنی کہ سائلہ کلرکاں وکیل صاحبان ہے جڑے تنگی دی وجہ تو یعنی کہ نہیں یعنی کہ گزر ہو سکتا انہوں کا، تو یعنی کہ سیوریج کا نظام پہلے صحیح ہونا ہو جائے، اپنے صدر نوں چاہیے جی کہ نظام ٹھیک کرن۔ فیصل آباد میں مونسون بارش ناقص سیوریج سسٹم کے سبب شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عزادار حسین کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ میں 110 ملی میٹر بارش، بادل جم کر برسے، گلیاں، بازار اور ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے، شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات۔
सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद एसएमडी वासा मुतहरिक, एडीसी का मैनेजर सुत्रा पंजाब समेत शहर का दौरा, वासा और सुत्रा पंजाब की टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिटी सदर अंजुमन ताजरान का निकासी आप सरगर्मियों का इजहार इत्मीनान। झंग में 24 घंटे के दौरान 110 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। शहर के मुतअद्दिद इलाके नदी नालों में तब्दील हो गए। यूसुफ शाह रोड, फवारा चौक, तहसील ऑफिस रोड, रेल बाजार और दीगर इलाके पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हुआ तो शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बादल बरसने के दौरान ही वासा ने रेल बाजार, गोजरा और टोबा रोड और बक्कर रोड समेत शहर के दीगर हिस्सों में ऑपरेशन जारी रखा। एडिशनल डीसी आमिर महमूद का मैनेजर सुथरा पंजाब के हमरा शहर भर का दौरा, वासा सुथरा पंजाब की टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिटी सदर अंजुमन ताजरान हाजी हाशिम का इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। डिप्टी कमिश्नर साहब जो जाएंगे हैं सर बाबर साहब दीन साहब, उनकी बड़ी खुसूसी हदायत हैं। सर खुद भी अभी फील्ड में हैं और पूरी इंतज़ामिया जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इस टाइम मुतहर्रिक है। पर्पज़ ये है कि जितनी हमारी मेन शाहराएँ हैं और उनके साथ साथ जो हमारी गलियाँ, मोहल्ले और हमारी कमर्शियल मार्केट्स हैं उनको भी हम विज़िट कर रहे हैं कि जो तमाम टीमें जो हैं फील्ड में हैं, डिस्पोजल पे भी गई हैं, तहजीब रोड पे, खेते वाले बाज़ार, अनारकली, तमाम बाज़ारों का विज़िट करें जहाँ पर भी पानी चौक है वो तो निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों की निस्बत ये बहुत बेहतर इंतजाम हैं। वासा इंतजामिया के मुताबिक बारिश के बाद शहर के बेशतर हिस्से में फौरी रिलीफ फराहम किया गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। टोबा टैक्सी में शदीद बारिश, शहर पानी में डूब गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। ब्रीर कॉलोनी का सिटी पार्क भी ज़ेर-ए-आब, निकासी ना होने से ताफुन फैलने लगा। इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप भी पानी की नजर रसाई माहौल बन गई। रिमझिम से बरकी निज़ाम मुतासिर, नो फिगर ट्रिप, शहर अंधेरे में डूब गया। कहीं जमीन बैठ गई तो कहीं गाड़ी। तरक्याती मनसूबे बबाल जान बन गए। डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। माहम आसिफ अली कहती हैं कि अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है, शहर से पानी की निकासी जल्द मुकम्मल की जाए। सिंह में तूफानी बारिश से शहबाज चौक पर बारिश का पानी जमा। मरकजी शाहरा, जंग रोड, गोजरा रोड पानी में डूब गए। रजाना रोड, अंडरपास, क्राइम सेंटर, इस्लामपुरा और मोहल्ला ईदगाह भी पानी पानी। गला मंडी, वरियांवाला रोड, मुस्तफाबाद, राजा पार्क, मोहम्मदपुरा, इकबाल नगर भी पानी में गुम। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गोजरा रोड है, ये जो यहाँ पर तक वन वे बना हुआ है वहाँ तक जो है तकरीबन 3-3 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर शहबाज चौक की बात करें तो शहबाज चौक में भी ऐसे ही पानी खड़ा हुआ है और मुख्तलिफ जो बाजार हैं, जो मेन शाहराएँ हैं वो सारी पानी से भर गई हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इसको पानी को फिल फोर जो है वासा की जानिब से, इंतजामी की जानिब से रिमूव किया जाए ताकि कोई हादसे से बचा जा सके। टोबा टेक सिंह के इलाके बलेर कॉलोनी का सिटी पार्क बारिश और सीवरेज के पानी की जद में आ गया। पार्क में 1 फुट तक पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पार्क में निकासी के लिए मुसर इक़दाम न होने से ताफुन फैलने लगा। टोबा में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस के स्टाफ भी बारिश के पानी में डूब गए। मुसाफिरों का इलेक्ट्रिक बसों के स्टाफ तक पहुंचना माहौल बन गया। बस स्टॉप्स पर मर्दो खवातीन मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि बारिश और सीवरेज का पानी मिल चुका है, बस स्टॉप्स के तरफ जमा पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। टोबा टेक सिंह में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई के लिए बनाया गया गड्ढा मजीद गहरा हो गया। मट्टी दब जाने से गाड़ी भी जमीन में धुंस गई। मूसलाधार बारिश के बाद जमीन धुंस गई। रेस्क्यू 1122 की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मुख्तलिफ मकामात पर जमीन धंसने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नशेबी इलाकों में निकासियाब का जायजा लिया। जनरल डॉक्टर तारिक उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भी हमरा थे। एमडी वासा कामरान कालू भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर में पानी की निकासी के लिए वासा टीमों का भरपूर ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन हमाद जमील और साथी रिपोर्टर आलम शेख के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। बोसीदा छतें और लरजती दीवारें तलबा के लिए खतरा। जिला फैसलाबाद के 130 स्कूलों की इमारतें सिक्योरिटी रिस्क करार। तमीर और मुरम्मत के काम इल्तवा की भीड़ चढ़ गए। 50 के करीब सरकारी कॉलेज भी फौरी तवज्जो के मुंतज़िर। ठेकेदारों के लिए बिल्डिंग सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। खस्ता हाल इमारतों पर मंजूर शुदा M&R फंड्स इस्तेमाल करने की सिफारिश। 15 अगस्त तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। फैसलाबाद के 130 सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल करार। बहाली के काम इल्तवा की भीड़ चढ़ गए। 55 के करीब सरकारी कॉलेज की इमारतें भी हकाम की तवज्जो की तलबगार हैं। महकमा तलीम डायरेक्टर कॉलेज की बिल्डिंग हकाम को बरवक्त काम निपटाने की हिदायत। मानसून में तलीमी इदारों की सर्वे रिपोर्ट देने की सदा। खस्ता हाल तलीमी इदारों पर M&R मंजूर शुदा जारी फंड्स लगाने की सिफारिश भी की गई। प्री मानसून के पेश नजर खस्ता हाल इमारतों की तमीराती कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 अगस्त तक तलब की गई। कैमरामैन मोहित के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। बारिश ने करीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की खस्ता हाली बेनकाब कर दी। इंडोर हॉल की छत टपकने से बाग में पानी भर गया।
सीलिंग भी टूट फूट का शिकार, हॉल में पानी जमा होने से इमारत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। खिलाड़ियों का कॉम्प्लेक्स की फौरी मुरम्मत और बहाली के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा। बारिश के दौरान कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल की छत मुतअद्दिद मकामात से टपकने लगी, जबकि छत की सीलिंग भी टूट फूट का शिकार नजर आती है। पानी मुसलसल हॉल के अंदर टपकता रहा, जिससे फर्श पर पानी जमा हो गया और इमारत की नाकिस देखभाल एक बार फिर सामने आ गई। हॉल में जमा पानी से इंडोर फ्लोर को नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ गया। खिलाड़ी और शहरियों ने मुतालबा किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फौरी मुरम्मत, छत के वाटर प्रूफिंग और सीलिंग की बहाली की हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं ताकि खेलों की सरगर्मियां बिला तात्तुल जारी रह सकें। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, परिवहन फैसलाबाद। फैसलाबाद रीजन में बारिश के बाद फेस्को का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम, 80 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतादिद शहरी और देही इलाके 6 से 7 घंटे अंधेरे में डूबे रहे। बिजली की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुमलाते ज़िंदगी मुतासिर। फेस्को हुकाम के मुताबिक बारिश रुकते ही बहाली के काम शुरू कर दिए जाते हैं। फैसलाबाद रीजन में बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद अंदाज में मुतासिर। बारिश के बायस 80 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। पिछले 7 से 8 घंटों में 50 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी के मसाइल का सामना है। 30 फीडर से 10 घंटे बाद बिजली की बंदिश के मसाइल दूर किए जा सके हैं। रीजन भर के बेशतर देहाती और शहरी इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मिल्लत टाउन, धनौला, ग्रीन टाउन, मुसरम टाउन, जुमरा रोड, गुलस्तान कॉलोनी, गुलफशां कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी और लकड़ मंडी समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में कई घंटे बाद बिजली बहाल हुई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को की हिदायत पर तमाम ऑपरेशनल स्टाफ मुतहरक है। बारिश रुकते ही बिजली बहाली के काम शुरू किए जाते हैं। आला अफसरान बिजली बहाली के कामों की निगरानी कर रहे हैं। बारिश से मुतासरा इलाकों में 6 से 7 घंटे बाद बिजली बहाल हो सकी है। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मानसून का तगड़ा स्पेल। गुलाम मोहम्मदाबाद में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद शहर के मुताबिक शाहराएं ज़ेर-ए-आब आ गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट में मुतहरक। शहर भर में निकासी-आब का हंगामी ऑपरेशन जारी। जिले इंतजामिया और वासा की बरवक्त कार्रवाई के बाद निकासी-आब का अमल तेजी से जारी है। फैसलाबाद में मानसून के स्पेल में 55 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर में निकासी आब की हंगामी ऑपरेशन जारी। कमिश्नर इमरान हामिद शेख, डिप्टी कमिश्नर और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरक। मुख्तलिफ इलाकों का मुसलसल जायजा। वासा, PHA और जिला कौंसिल की तमाम मशीनरी बारिश के पानी की निकासी में मसरूफ। कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि जेल रोड का वो मकाम जहां से गुजरना मुमकिन न था, अब मुकम्मल तौर पर क्लियर है। शहर की अहम शहराओं से बारिश के पानी की निकासी तेजी से जारी और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों से पानी की मौजूदगी की निशानदेही की जा रही है। शहर के हर कोने से निकासी आब यकीनी बनाई जाएगी। आधा घंटा पहले यहाँ से गुजरना नामुमकिन था तकरीबन। ये पूरी सड़क जो है ये पानी से भरी हुई थी, लेकिन हमारी, जैसे मैंने बताया, जी इंतजामिया 100% एक्टिव है। पूरी जिले की मशीनरी जो के बॉन्डिंग पॉइंट को क्लियर कर सकती है, जो डिप्लॉयड है। इस पॉइंट को हमने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। 5 वासा की मशीनें आई हैं। 20 मिनट के अंदर ये सारा एरिया क्लियर हुआ है। इंतजामिया भी मुतहरक। सड़कों पर वासा की मशीनरी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला इंतजामिया के नुमाइंदगान भी मौजूद। अजमत फिरदौस का कहना था कि शहर की अहम शहरा से पानी को खत्म करने का सिलसिला जारी है और रेलिवेंट इदारे हैं वो सारे फील्ड में हों और मुतहरक हो जाएं। बारिश से पहले ही सारे जो जितने भी मानसून कैंप्स हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए गए थे और तमाम जो फील्ड स्टाफ था वो ऑलरेडी अलर्ट था। जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी है तो सारे अपने काम में लग गए। मशीनरी चूँकि अवेलेबल थी तो हम डिस सब की तरफ से यहाँ पर जितने भी हमारे कैंप्स थे वहाँ पर सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। डिस सब खुद भी अभी विजिट कर रहे हैं। फैसलाबाद में बारिश के बाद शहर की तमाम अहम शहरों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।